السلام علیکم، میں ہوں سائمہ اسحاق۔ پاکستانی زبانوں کے ادب سے ایک سرائیکی افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے تحریر کیا ہے پروفیسر حبیب موہانہ نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے خورشید ربانی نے۔ افسانے کا عنوان ہے جٹی چڑیا۔ مکندہ ہندو درابن کے نامور جاگیرداروں اور عمائد میں سے تھا۔ اس کی بیٹھک پر عوام کی اکثریت کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ بہت شریف اور نفیس انسان تھا۔ اس کی اہم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کا گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اس کو خدا کی مخلوق سے بہت محبت تھی۔ اس کی بیٹھک پر چڑیوں اور کووں کے لیے دانا پانی الگ اور مخصوص برتنوں میں رکھا ہوا ہوتا تھا۔ صادق اور اس کے ساتھی بچے قبرستان سے چڑیا پکڑ کر مکندے کے پاس لاتے۔ مکندہ انہیں روپیہ دے کر چڑیا خرید لیتا۔ بچے دکان سے اپنے لیے کوئی کھانے کی چیز لیتے اور بھاگ جاتے۔ ساون جب بھی آتا، درابن کے بچوں کی عید ہوتی۔ بارش سے چڑیوں کے پر اس طرح بھیگ جاتے جیسے پانی سے ان کے پر باندھ دیے گئے ہوں۔ بارش سے بھیگی چڑیاں قبرستان میں پیلو کے درختوں پر مینڈکوں کی طرح کودتی پھدکتی پھرتی تھی۔ بارش کے دن بچوں کی ٹولیاں قبرستان کا رخ کرتیں۔ وہ سردی سے کپ کپاتی چڑیوں سے اپنی جیبیں بھرتے اور مکندے کے دروازے پر آ دھمکتے۔ چڑیوں کے بدلے روپیہ دے کر وہ درابن کی چڑیوں کو قربان ہونے سے بچائے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے علاقوں میں بارش کے دن چڑیوں کو مار کر کھانے کی روایت ابھی جاری تھی۔ بچے چڑیا فروخت کر کے صوبت بناتے تھے۔ یہ دن ان کے لیے عید سے کم نہ ہوتا تھا۔ صادق کا والد حق نواز پہلے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک دن گھر کے بھائی بھی تقسیم ہوتے گئے۔ حق نواز کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر کی بچی کچی گندم بھی ختم ہو گئی۔ وہ مکندے کی بیٹھک سے چڑیوں کے لیے گندم سے بھری کناری خالی کر دیتا اور گھر لے آتا۔ کچھ دنوں سے صبح سویرے خالی برتن دیکھ کر مکندے کو شک ہو گیا۔ اس نے چور پکڑنے کے لیے بیٹھک میں چھپ کر بیٹھنے کی ٹھان لی۔ حق نواز پکڑا گیا۔ اس نے مکندے کو اپنا دکھڑا سنایا۔ سیٹھ جی، میں غریب ہوں۔ پہلے ہم سب بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ اب ہر ایک کا الگ رخ ہے، سب جدا جدا رہنے لگے ہیں۔ دوسرے بھائی اچھی طرح گزر بسر کر رہے ہیں، وہ مزدوری بھی کر سکتے ہیں، مگر میں سست مزاج اور کاہل ہوں۔ جب بوٹی پی لیتا ہوں تو سارا گاؤں اونگتا نظر آتا ہے، اپنے جوگا بھی نہیں رہ پاتا تو اور کیا کروں؟ مکندے نے یہ بات سن کر اسے تسلی دی۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں روزگار دوں گا۔ سیٹھ جی، روزگار تو درابن میں بہت ہے، لیکن میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ بھنگ پینے کے بعد تو ناک پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ کام آسان ہوگا۔ سیٹھ جی، آسان تو صرف روٹی کھانا ہے اور بھنگ پینا ہے۔ تم فکر نہ کرو، کام تمہاری حیثیت کا ہی ہوگا۔ بیٹھک کی صفائی کرنا، پانی بھرنا، حقہ تازہ کر دینا اور مہمانوں کی آؤ بھگت کرنا۔ حق نواز نے شرائط مان لی۔ یوں اس کی زندگی آسانی سے گزرنے لگی۔ مکندے کی ایک بیٹی ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسری لورا لائی بیاہی گئی تھی۔ وہ خود اپنی بوڑھی بیوی اور چھوٹی بیٹی پریا کے ساتھ اپنی بڑی حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ حق نواز 6-7 ماہ تو مکندے کے کام دل لگی سے کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ہڈیوں میں رچی بسی سستی اور کاہلی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن بھنگ پی کر ٹوٹی چارپائی پر سوتا رہتا اور اس کا بیٹا صادق بیٹھک پر رکھے پانی کے مٹکے بھرتا۔ صادق کی عمر 14-15 سال ہو گئی۔ مکندے نے اسے یوں بھاگ بھاگ کر کام کرتے دیکھا تو اپنا معتمد خاص بنا لیا۔ وہ اسے زمینوں اور دیگر معاملات کے حل کے لیے جرگوں میں شریک کرنے لگا۔ یوں حق نواز کی جان چھوٹ گئی اور وہ صرف بھنگ کا ہو کر رہ گیا۔ مکندے کی عادت تھی کہ وہ عصر کے وقت گندم کے دانے مٹھی میں بھرتا اور قبرستان پہنچ جاتا۔ اسے آتا دیکھ کر چڑیاں اور مینائیں اسے یوں گھیر لیتیں جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ سر پر پکھیوں کی چھاؤں لیے وہ شادی دادا کے مزار کی گھنٹی بجاتا۔ محرم میں ہر سال قبر کی لپائی تو اس نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔ لپائی کے بعد رنگ برنگی چادروں اور جھنڈوں سے مزار کو دلہن بنا دیتا۔ ہر سال جیٹھ کے مہینے میں گندم کا حلوہ ہی نیاز کرتا۔ گزشتہ 8 سال سے صادق مکندے کے گھر کا فرد بنا ہوا تھا۔ ایک دن پریا اور صادق گھر سے بھاگ نکلے۔ ساری ہندو برادری مکندے کے پاس آئی اور کہا، صادق کے خلاف FIR کٹواؤ، حق نواز کی پولیس سے پٹائی کرواؤ،
तो वो अपने बेटे के बारे में बता देगा। हम इलाके के सरदार हैं, एक नौकर हमारी बेटी लेकर भाग गया, हमारी नाक कट गई। सब लोग कह रहे थे कि मुकंदे की बेटी भाग गई, लेकिन मुकंदे ने किसी की ना सुनी। कई हिंदू उससे नाता तोड़कर चले गए। हकनवाज को जब पता चला कि हिंदू उसे गिरफ्तार कराने की सोच रहे हैं, तो उसने रात की तारीकी में घर वालों को साथ लिया और दराबन को खैर बात कह दिया। इस दुख ने मुकंदे की कमर तोड़ दी। वो कई दिन तक घर से बाहर न जा सका। उसकी बैठक के साथी भी आहिस्ता आहिस्ता उसे दागे मफारकत दे गए। चिड़ियों के लिए पानी से भरे कटोरे सूख गए। खरलों और किनारियों में फिर किसी ने दाने न रखे। चारपाइयां शिकस्ता हो गईं। पानी के मटके बेरंग हो गए। मुकंदे ने शर्मसारी की खबर अपने बेटे को न दी। चंद माह बाद उसे किसी तरह इत्तला हो गई। वो कलकत्ता से दराबन आया, जमीनों की जिम्मेदारी ढल्लू हिंदू को दी और माँ बाप को कलकत्ता ले गया। वहां 1 साल बाद मुकंदे की बीवी इंतकाल कर गई। मुकंदे की बीनाई भी कमजोर हो गई। बेटे ने नजर की ऐनक दिला दी, मगर वो असा का सहारा जरूर लेता। एक दिन नसवार लेने के लिए घर से निकला और 3 दिन तक वापस न आया। बेटे ने चौथे रोज कई मुश्किलों से उसे तलाश कर लिया। मुकंदे ने वो रात घर में जैसे तैसे गुजारी। सुबह होते ही बेटे से कहा, मेरा इस शहर में दाना पानी खत्म हो गया है, मैं दराबन वापस जा रहा हूँ। इतने बड़े शहर में मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। मैं देहाती आदमी हूँ, शहर की आबो हवा मुझे रास नहीं आती। यहाँ लोग गुम हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाने से रहे। इतने बड़े शहर का क्या फायदा जहाँ पड़ोसी को पड़ोसी नहीं पहचानता। बेटा, बड़े शहर बहुत अनजान होते हैं। दराबन रात की रोशनी से महरूम है, मगर मैं वहां कभी घर की राह नहीं भूला। यहाँ तो दिन को गुम हो गया था। मुझे दराबन की गाड़ी में बिठा दो, मुझे यहाँ घर छोड़ने का रोग खाए जा रहा है। मुझे घर की खाकी दीवारों और खाकी गलियों की याद रुलाने लगी है। मैं दराबन के आसमानी छप्पर के नीचे बैठने को तरस गया हूँ। मुझे मेरी चिड़ियाँ याद करती होंगी। उनके पानी के बर्तन खाली होंगे, मैं उनके लिए पानी भरूंगा, खरलियों में दोबारा से दाने डालूंगा। बेटे ने लाख समझाया, लेकिन मुकंदे ने कोई बात न सुनी। मुकंदा दराबन वापस आ गया। उसने पानी और दानों के बर्तन धोए और उनको ताज़ा किया, लेकिन बैठक आबाद न की, क्योंकि उसे बेटी के भाग जाने का शर्मनाक लम्हा याद था और बाकी खानदान इससे पहले की तरह नाराज था। कलकत्ते से वापसी पर उसे कोई मिलने न आया। मुकंदा सारा दिन घर में तन्हा गुजारता। अब उसने रियाज नामी नया खादिम रख लिया था। रियाज जवानी के दिन बिता चुका था। वो इतना करता था कि मुसाफिरों के लिए बैठक में पानी के 2 मटके भर देता। मुकंदे के लिए खाना अपने घर से बनवा लेता। मुकंदे को प्रिया का दुख खाए जा रहा था। इसने घूमना फिरना छोड़ दिया था। सारा दिन असा के सहारे घर की अंधेरी कोठरियों में पागलों की तरह फिरता रहता। 1945 में गांधी जी दराबन आए। शेर शाह के थल्ले पर उन्होंने जलसा किया। वहां सारे कांग्रेसी जमा हुए, मगर मुकंदा उनसे मिलने भी ना गया। बच्चों से चिड़ियां खरीदना और उन्हें आज़ाद कर देना ही अब उसका कारोबार था। एक दिन एक जख्मी चिड़िया उसके पास लाई गई, जो किसी शिकारी का निशाना बन गई थी। मुकंदे ने रुपया दिया और बच्चे से चिड़िया ले ली। वो चिड़िया कुछ दिनों तक नाराज बच्चों की तरह इधर उधर छुपती और कतराती रही। मुकंदा कांपते हाथों से उसे पकड़कर खिलाता पिलाता। रियाज को भी ताकीद करता कि वो जख्मी चिड़िया का ख्याल रखे, कोई बिल्ली या चील उसे ना खा जाए। कुछ दिन बाद उसका जख्म तो मुंदमिल हो गया, मगर वो पर टूटने के बाइस उड़ नहीं सकती थी। सारा दिन पाँव पाँव चलती, मुकंदे की हवेली में नाचती फिरती। मुकंदा उसे बड़े प्यार और रहम दिलाना नजरों से देखता। चिड़ियों के गौल पानी और गंदुम के दानों से भरे बर्तनों पर जमा हो जाते। चिड़ियां एक दूसरे से लड़ती झगड़ती, दाना चुगती और पानी पीती रहती। जख्मी चिड़िया भी उनके साथ खेलती रहती। मुकंदा रियाज से कहता, मैं इन चिड़ियों के झगड़े देखने के लिए कलकत्ता से वापस आया हूँ। हमारे कस्बे की चिड़ियों के नाज नखरे ही जुदा हैं। कलकत्ता की चिड़ियाँ ऐसी नहीं हैं। हमारे इलाके की चिड़ियाँ भी देसी हैं। ये देहाती औरतों की तरह हर वक्त बोलती रहती हैं। जटियाँ चाहे पानी भरें, चाहे गंदम की कटाई या सिलाई कढ़ाई करें, उनकी ज़बानें खामोश नहीं रह सकती। इसी तरह हमारी चिड़ियाँ भी चुप नहीं रहती। रियाज, ये जख्मी चिड़िया तो हमारे घर रहते रहते जट्टी बन गई है। ये पक्की जट्टी है। इसकी सारी आदतें जटियों जैसी हैं।
चिड़ियों का कौल खा पी कर दीवार पर जा ठहरा। जट्टी चिड़िया ने भी बिसात भर उड़ने की कोशिश की कि वो दूसरी चिड़ियों के साथ उड़कर दीवार पर पहुंच जाए, मगर उड़ारी भरते ही दीवार से टकराकर गिर गई। दिन को जट्टी चिड़िया की कई दोस्त और सहेलियां होती, लेकिन काली रात उसे अकेले ही काटनी पड़ती। उसके साथ बातें करने वाला कोई ना होता। वो रात किसी घड़े के पास बैठे बैठे गुजार देती। उसकी शब्द इस तरह कटती जैसे कोई राह भूला तन्हा सहरा में रात गुजारता है। मुकंदा सुबह सवेरे स्नान करने के लिए जागता तो जट्टी चिड़िया चूं चूं करके बोलना शुरू कर देती। मुकंदा भी अपनी तन्हाई छुपाने के लिए उससे बातें करने लगता। जट्टी, तुम जाग रही हो? सो जाओ, अभी तो रात बाकी है। मुकंदा बोलता तो जट्टी चिड़िया को और जोश आ जाता। वो मजीद जोर जोर से बोलने शुरू कर देती। तुम पूरी जट्टी हो, तुम सो जाओ, जट्टियों ने घर के काम काज करने होते हैं, तुमने क्या करना है कि सुबह तुम जाग गई हो। वो मुकंदे की चारपाई के और करीब आ जाती। एक दिन जट्टी चिड़िया दूसरी चिड़ियों के साथ दाना चुगने में मसरूफ थी कि बिल्ली ने अचानक हमला कर दिया। बाकी चिड़ियां तो उड़कर दीवार पर जा बैठी, मगर जट्टी चिड़िया जिंदगी की तगोदो करने के बावजूद बिल्ली के हाथ लग गई। मुकंदे ने अपना असा और रियाज ने जो पानी पी रहा था, पानी की डोली बिल्ली को दे मारी। डोली बिल्ली के सर में जा लगी। वो अपनी जान खतरे में देखकर जट्टी चिड़िया को भूल गई। मुकंदे ने चिड़िया को उठाया, जो डर के मारे सहमी हुई थी। उसके जिस्म से खून रिस रहा था। मुकंदे ने चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। कई दिन उसकी मरहम पट्टी करता रहा। मुकंदा रात को जट्टी चिड़िया का पिंजरा तार से बांध देता और दिन को जमीन पर रख छोड़ता। फागन की हवाएं जोबन पर थीं। ये चिड़ियों के लिए मोहब्बत का मौसम होता है। एक चिड़ा जट्टी चिड़िया के आसपास बहुत घूमता रहता। जट्टी चिड़िया भी अपनी दुम हिलाती रहती। मुकंदे ने उनके दिल का राज जान लिया। वो दिन को जट्टी चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर देता। दिन भर दोनों खेलते कूदते रहते। जब जट्टी उम्मीद से हो गई तो दोनों तिनके चुनने लगे। 2-3 दिन तो ये फैसला न कर सके कि घोंसला कहाँ बनाए। चिड़ा तिनका उठाए छप्पर के शहतीर पर जा बैठता और जट्टी चिड़िया तिनका चोंच में थामे ओखली में जा ठहरती। आखिर चिड़े ने उसकी बात मान ली। जट्टी चिड़िया ने ओखली में अंडे दिए। वो रात को अंडों पर बैठती, मगर चिड़ा शहतीर पर बैठा मुश्किल से शब गुजारता। मुद्दत पूरी होने पर अंडों से बच्चे निकल आए। चिड़े और चिड़िया ने कीड़े मकोड़े और दाने बच्चों के मुंह में डालना शुरू कर दिए। इसी दौरान मुकंदे को बुखार हो गया। वो कई दिन बिस्तर से उठ ना सका। पड़ोसियों के एक बच्चे ने छत पर चढ़कर जट्टी चिड़िया को निशाना बनाया। बदकिस्मती से कंकड़ चिड़े को जा लगा और वो कांपते हुए मर गया। चिड़े की मौत के बाद जट्टी चिड़िया ने हिम्मत न हारी। वो लंगड़ाती, गिरती, पड़ती अकेले ही बच्चों के लिए दाने लाने और उनकी परवरिश करने लगी। जानवरों और परिंदे भी इंसान की तरह हैं। ये जीरूह भी इंसानी जिंदगी का बार उठाने के लिए हर तरह का दुख दर्द बर्दाश्त करते हैं। बका की मंजिल की सिमत रवां दवा है। जब मुकंदे का बुखार हल्का हुआ तो पहले की तरह जट्टी चिड़िया का हाल जानने आया तो देखा कि जट्टी चिड़िया के बच्चों को चींटियों ने घेर रखा है। उसने बड़ी मुश्किल से बच्चों को उनसे आज़ाद कराया। एक बच्चा तो सूख कर कांटा हो चुका था, जबकि दूसरे की सांसें अभी बहाल थीं। रियाज और मुकंदा उसकी देखभाल करते रहे। एक दिन मुकंदा अपनी पुरानी संदूकचियों और अलमारियों से जमीनों के कागजात तलाश कर रहा था कि प्रिया की बचपन की गुड़िया उसको नजर आ गई। वो उसे उठाए बाहर आया, उसकी मिट्टी झाड़ी और रियाज को दिखाते हुए कहने लगा, रज्जू, ये देख प्रिया की गुड़िया। इसका कपड़ा कितना पुराना हो चुका है। अपने लिए कपड़े पसंद करने की खातिर वो मेरे साथ बाजार गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। वो ठंडी आह भर के गोया हुआ। प्रिया खुद तो चली गई, मगर गुड़िया छोड़ गई। रज्जू, बेटियां और चिड़ियां एक जैसी होती हैं। चिड़ियां हमारे घरों की छतों पर घोंसले और पर छोड़कर सर्द हवाओं के साथ उड़ जाती हैं। बेटियां अपने खिलौने और गुड़िया छोड़कर माँ बाप का घर उजाड़ देती हैं। मुकंदा देर तक इस गुड़िया को चूमता और आंसू बहाता रहा। जट्टी चिड़िया का बच्चा अगरचे उड़ने के काबिल नहीं हुआ था, फिर भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक घोंसले से बाहर निकल आता। उसे एक जगह आराम न आता, हर वक्त इधर उधर फुदकता और उड़ने की कोशिश करता रहता। एक दिन एक चील को मौका मिल गया और वो उसे उठा ले गई। जट्टी चिड़िया रोती बिलखती रह गई। मुकंदे को दूसरी मर्तबा के बुखार ने उठने के लायक न छोड़ा। वो चारपाई का होकर रह गया। मुकंदे का आखिरी वक्त जानकर नाराज बिरादरी उसे देखने चली आई। मुश्किल वक्त में रियाज ने उसकी बहुत खिदमत की। एक दिन रज्जू ने यह देखकर कि अब मुकंदा जिंदा नहीं रह सकेगा, कहा, सेठ जी, तेरी बीमारी की इत्तला तेरे बेटे को भिजवाऊं? मुकंदे ने कहा,
नहीं, रिजू ने दोबारा कहा। लोरालाई तेरी बेटी को खबर करूं? मुकंदे ने जवाब दिया। नहीं, रियाज कहने लगा। सेठ जी कोई दूसरा अपना तो हो। मुकंदे ने कहा। रिजू, इसकी ज़रूरत नहीं। मरने के बाद मुझे हर हाल में जला दिया जाएगा। मेरी जगह जलने कोई और तो नहीं आएगा। सेठ जी, और तो कुछ नहीं, बस ये होता है कि इंसान अपने आखिरी वक्त में अपने प्यारों को देख लेता है, और वो भी तेरी खुली आंखें देख लें। मुकंदा सिसकने लगा और कहा, रिजू, ये खुली आंखें किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। मैं तो इनको छुपाए फिर रहा हूँ। बख्तों जली किसी के सामने जाने के काबिल नहीं। इसलिए तो मैं इनको कलकत्ता ले गया था। इसलिए तो मैं 2 साल से घर में कैद हूँ। रियाज ने तसल्ली दी। सेठ जी, तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। सब्र करना पड़ता है। अल्लाह बेहतर करेगा। मुकंदे ने रियाज को कुछ कागजात दिए और कहा, ये बैठक और बाग मैंने तेरे नाम कर दिए हैं। ज़मीन पिरिया की है। कई दिनों से बिरादरी वाले कह रहे हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं। तुम भी चलो, क्योंकि ये मुल्क अब तकसीम हो रहा है। मुसलमान यहाँ आएंगे और हिंदू वहाँ जाएंगे। रियाज, मैं तो जन्मभूमि नहीं छोड़ सकता। मैं कलकत्ते जाकर देख चुका हूँ। घर बार छोड़ना कितना मुश्किल है। पाँव में मीखें गाड़नी पड़ती हैं। दराबन मेरी कमज़ोरी है। मैं यहाँ पैदा हुआ, यही मरूंगा। सारे हिंदू यहाँ से चले जाएंगे, मैं भी थोड़ी देर का मेहमान हूँ। फिर सारी दराबन मुसलमानों की हो जाएगी। फिर प्रिया भी लौट आएगी। ये अमानत उसे दे देना। वो शर्मिंदा भी नहीं होगी। वो सर उठाकर चलेगी, क्योंकि अपनी बिरादरी में से कोई भी उसे ताना देने वाला नहीं होगा। रियाज, ये किनारियाँ और खरल पानी और दानों से भरे रखने हैं। अगर कभी शादी दादा के कब्र के पास से गुजरो तो वहाँ गंदुम के चंद दाने डाल देना और मेरी तरफ से मज़ार की घंटियाँ बजा देना। ये काम ज़रूर करना, और मेरी जट्टी चिड़िया का भी ख्याल रखना। ये गरीब मिस्कीन भी मेरी तरह तन्हाई और दुखों से भरी ज़िंदगी गुजार रही है। ये जट्टी मुझे बहुत अजीज़ है। ये कहते हुए मुकंदे ने अपनी आंखें मूंद लीं।